Good morning, students. Today we will start third chapter, fiber to fabric. Students, in this chapter we will deal about fiber and how fabric is made from fiber. First of all, we have to discuss why cloth is needed. As we all know, cloth protect us from heat, rain, summer, winter. These all are the reasons behind to wearing clothes. Okay? In the earlier time, our ancestors tried to cover his or their body from the leaf of the plant, from animal skin, but as the time changes, the body covering material changes into cloths. So let us discuss about fiber. What is fiber? First of all, what is fiber? Fiber is a smallest strand of fabric. Means if you pull out a smallest thread of your clothes, then you will see a very smallest, a very thin like a structure in your hand, that is fiber. Means fiber is a very thin material that is obtained from our nature, or it is also prepared chemically. Then what is fiber? A very thin strand to which a cloth, into which cloths are made, is called fiber. Okay? What is fiber? A very thin strand to which cloths are made is called fiber. In हिंदी, जब आप अपने क्लॉथ से कोई थ्रेड को खींचने की कोशिश करते हैं, तो उस थ्रेड का सबसे स्मॉल, सबसे पतला जो मटेरियल आपके हाथ में आता है, उसी को हम क्या करते हैं? फाइबर करते हैं। और फाइबर ही आपका स्ट्रैंड भी कहलाता है, मतलब फाइबर को दूसरे वर्ड में स्ट्रैंड भी कहते हैं। ओके? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज मैन मेड और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। In natural fiber, we get cotton, jute, silk, wool. Means there are two types of plant fiber. These two are plant fiber and these two are animal fiber. Why do we say that? Plant fiber or animal fiber? Because cotton and jute are obtained from plants, but silk is obtained from an insect, that is silk moth or silkworm. Silk is obtained from
silkworm, and wool is obtained from sheep, goat, camel, etc. Because of their origin, it is called animal fiber, and because of this, it is called plant fiber. Okay, there are two types of fiber, that is natural fiber and man-made fiber. In natural fiber, we get cotton, jute, silk, and wool. But in man-made fiber, what is man-made fiber? As by its name, man-made means made by man. The fiber that is obtained chemically obtained fiber या chemically prepared. Okay, there are many man-made fibers, that is rayon, nylon, polyester, etc. These all are, you will read in higher classes, but in this class you can read about natural fiber. Okay, now then what is natural fiber? A fiber that is obtained from nature are called natural fiber, and a fiber that is chemically prepared are called man-made fiber. In other words, artificial fiber or synthetic fiber. Okay, now next, the bunch of the fiber which is pressed and twisted and converted into long strong thread is called yarn. What is the word? Yarn. yarn क्या होता है? It is thread. Okay, in definition we say that when we twisted fiber or pressed fiber, then we get yarn in form of thread. Means जब हम फाइबर को, आप जानते हैं कि फाइबर क्या होगा? जो प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एक धागा, एक पतले से धागा के रूप में हमको छोटे छोटे मटेरियल मिलते हैं, वो फाइबर है। और फाइबर को जब हम ट्विस्ट करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, तो जो एक धागा के रूप में हमको बड़ा सा एक फॉर्म मिलता है, उसी को कहते हैं यार्न या थ्रेड। फाइबर को समझिए क्या बोले हैं कि फाइबर वैसा मटेरियल है जो हमको एक थिन स्ट्रैंड के रूप में मिलता है। एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोलेंगे, क्लॉथ से आप निकालिएगा, लेकिन हमारे नेचर में जैसे कॉटन है, तो आप कॉटन के पेड़ से अगर आप कॉटन निकालते हैं, या सिंपली पेड़ को छोड़िए, आपके घर में कॉटन उगाए, उस कॉटन में सबसे स्मॉलेस्ट धागा को आप निकालिए, तो देखिएगा क्या, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो छोटा होगा। तो वो जो छोटा सा आपको बहुत पतला धागा जो दिखेगा धागा के रूप में, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रैंड, ठीक है, या फाइबर। और वो स्ट्रैंड को जब हम मिलाते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड को लेके जब हम मिलाते हैं, तो वो बनता है फाइबर थ्रेड के रूप में, जिसको हम लोग यार्न कहते हैं। ओके, तो दो तरीका से हम लोग यार्न बनाते हैं, भाई ट्विस्टिंग मिला के या प्रेस करके। मान लीजिए बहुत सारे फाइबर को रख दिए और उसको प्रेस कर दिए, मतलब आयरन से उस पे
हीट देती है तो वो सारे फाइबर आपस में जुड़ जाएंगे और आपका एक थ्रेड तैयार हो जाएगा। ठीक है, यार्न समझ गए कि यार्न क्या है? एक धागा। अगर हम बात करें स्पिनिंग का, मतलब थ्रेड कैसे बनाया गया, तो स्पिनिंग क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर, मतलब हम मिलाते हैं तो कई तरीका से फाइबर को स्पिनिंग किया जाता है। पुराने जमाने में हैंड स्पिंडल, जिसको हिंदी में टकली कहा जाता है, इस फॉर्म में होता था और इसमें हम लोग फाइबर को लपेटते थे, ठीक है, स्पिनिंग करते थे, तो इस हिसाब से हमको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर मिल जाता था धागा का। उसके बाद हैंड स्पिंडल भी आप जानते हैं, चरखा जिसको कहा जाता है, उससे भी आपको फाइबर से यार्न बनाने में, थ्रेड बनाने में काम आता है। और जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, अब मशीन स्पिनिंग व्हील भी आ गया है, जिसको मशीन स्पिनिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और वो अपने आप फाइबर को कलेक्ट करता है। आप फाइबर रख दीजिए, वो फाइबर को कलेक्ट कर लेगा और एक थ्रेड के रूप में वो बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो स्पिनिंग क्या है? फाइबर से थ्रेड बनाने के प्रोसेस को क्या कहा गया? स्पिनिंग। ठीक है, इतना समझे आप? नाउ if we talking about yarn, then from yarn means if you are want to make clothes with the help of thread, there are two general methods, that is weaving and knitting। मतलब आपको अगर धागा से कपड़ा बनाना है तो दो तरीका है, एक को कहते हैं वेविंग, क्या कहा जाता है? वेविंग, और एक को कहा जाता है निटिंग। ठीक है, अंतर समझिए। वेविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो धागा को मिला के काम करते हैं। जैसे एक धागा इस हिसाब से चलता है और दूसरा धागा इसके ऊपर से ऊपर और नीचे करते हुए क्रॉस में आता है। ठीक है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे से आया, फिर ऊपर से गया फिर नीचे से आया, ऐसे करके ये इस ढंग से आपको तैयार हो जाता है ये फॉर्म। और इसी को कहा जाता है, इसी जो आपका अरेंजमेंट होता है, इसी को अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग वेविंग। अगर आप कपड़ा को माइक्रोस्कोप से देखिएगा, सॉरी माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा, तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर कपड़े में दिखाई देगा। तब आप समझिएगा कि वो क्या है, वो आपका वेविंग प्रोसेस से तैयार किया गया है। ठीक है, तो मतलब वेविंग में टू सेट्स ऑफ थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक ऐसे एक इस ढंग से चलेगा हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, और इस हिसाब से दो सेट थ्रेड के रहेंगे और आपका कपड़ा तैयार होता है। लेकिन आप अपने घर में अपने पेरेंट्स में से मम्मी को देखे होंगे क्या कि वो ऊल को लेके स्वेटर बुनती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि ऊल को सिंगल ऊल का इस्तेमाल करके वो जो स्वेटर बनती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो है निटिंग प्रोसेस। क्या है? निटिंग। मतलब जब आप कोई कपड़ा एक थ्रेड के द्वारा ही बुन लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग निटिंग। ओके, तो दो तरीका होता है फाइबर से फैब्रिक बनाने का। मतलब फाइबर से नहीं, जो फाइबर से आपका थ्रेड बन गया, तो थ्रेड से क्लॉथ बनाने के लिए दो तरीका, एक वेविंग का और एक नीटिंग का। वेविंग में दो सेट ऑफ थ्रेड यूज होते हैं, जबकि इसमें एक ही थ्रेड यूज होता है। ओके,
लेकिन इसके अलावा दो और प्रोसेस हैं जिससे आपका कपड़ा का रूप दिया जाता है। ठीक है, आप कई बार देखे होंगे कुछ डेकोरेटिव फैब्रिक्स, मतलब बहुत सारे आपको क्लॉथ ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें गांठ बांध के एक नए नए डिजाइन को दिए जाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है नॉटिंग, ANOTTING, नॉटिंग, और दूसरा होता है क्रॉचेट वेविंग। ठीक है, कई बार आप डेकोरेटिव कपड़े को देखिएगा, वो इस हिसाब से बांध के तैयार किया जाता है थ्रेड को, फिर आपको लगेगा कि एक डिजाइन है, लेकिन थ्रेड से वो बांध के जो इस्तेमाल करके एक नया डिजाइन बनाया, वो कपड़ा हम लोग पहनने लायक तो नहीं होता है, लेकिन उसका ज्यादातर इस्तेमाल तीन प्रोसेस से किया जाता है। ये दोनों प्रोसेस का ये डेकोरेटिव फैब्रिक बनाने में काम किया जाता है। एक फैब्रिक को क्या नॉटिंग, जिसमें हम लोग गांठ बांध के थ्रेड्स में गांठ बांध के तैयार करते हैं, और एक क्रॉचेट वेविंग मतलब प्रेस करके दबा के दो थ्रेड को प्रेस करके आयरन से गरम करके उसको हम एक फैब्रिक तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्रॉचेट वेविंग। ठीक है, तो आज आपको हम बताए हैं फाइबर टू फैब्रिक। हम शुरुआत में आपको इंग्लिश में बोले हैं, लेकिन आप ही के लिए मैंने इंग्लिश में शुरुआत किया था कि आपका थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग भी बढ़े। तो सबसे पहले फाइबर क्या है? तो फाइबर एक स्मॉलेस्ट वेरी थिन स्ट्रैंड है जिसको हम फाइबर कहते हैं, और ये फाइबर हमको दो तरीका का हमारे नेचर में मौजूद है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल फॉर्म में हमको आ गया कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। कॉटन और जूट को प्लांट फाइबर करते हैं, सिल्क और वूल को एनिमल फाइबर करते हैं। ठीक है, मैनमेड हो गया जो वैसे फाइबर जो ह्यूमन के द्वारा केमिकली प्रोसेस किए जाते हैं उसको कहेंगे मैनमेड। इसमें आ गया रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक जो हायर क्लास में आपको पढ़ना है। और ये दोनों प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर में आपको जो वूल है वो सीप और गोट से कैमल से मिलता है, जबकि सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलग प्रोसेस को देखिए कि कैसे वेविंग किया जाता है, नीटिंग किया जाता है, स्पिनिंग कैसे होता है, स्पिनिंग के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। तो आपको डिवाइस के रूप में एक तकनीक देखते हैं इसको हैंड स्पिंडल कहा गया, जिसको हैंड स्पिंडल कहा गया। उसके बाद स्पिंडल चरखा हो गया, और लास्टली हम लोग स्पिनिंग मशीन भी देखेंगे। तो ये सब वेविंग के प्रोसेस में, आपको फैब्रिक बनाने के प्रोसेस में ये थ्रेड बनाने का प्रोसेस है। हम जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फाइबर से थ्रेड बनाने का, जिसमें आपको स्पिंडल, हैंड स्पिंडल और स्पिनिंग मशीन का आया, और फिर स्पिन जब हो गया, थ्रेड बन गया, तब हम उससे फैब्रिक बनाते हैं वेविंग और नीटिंग प्रोसेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो चीज समझ में नहीं आया है, हम मानते हैं ये आपके लिए नया चीज है, आपको बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया होगा, तो आप अपने डाउट क्लास में जोर से क्लियर होइएगा। ठीक है, थैंक यू।